on, bring it on, bring it on, bring it on, bring it on. Thank you so much. Welcome to JSW presents Times Lit Fest 2016, powered by Yes Bank. I must tell you, in a place like Mumbai, waiting for 20 minutes without any commotion and staying so silent in itself proves how much we'll be waiting for this session. So thank you so much for all that patience. And now, ladies and gentlemen, how sweet of you, ma'am. You've got the energy. Thank you so much. Thank you. Well, now, ladies and gentlemen, how are you doing, sir? So good to have you here. Thank you. Well, so getting to this session now, at the HDFC Lawns, this shall be the final session for the day at the HDFC Lawns, and much awaited one. This session is performance. Aditya Birla Group presents Song of the Hooghly Boatman, Gulzar Sahab's translations of Tagore, set to music by the one and only Mr. Shantanu Moitra and performed by the very beautiful Shreya Ghoshal. Let's have it. Big round of applause. Our music partner Sare Kamal has sponsored this evening for us, Aditya Birla Evening. Thank you so much to all our sponsors. Well, ladies and gentlemen, let us take this honor and opportunity to welcome them, though they need no introduction. Talking firstly about the very beautiful Shreya Ghoshal. Awards, accolades, and a lot of these things are just another thing because she just keeps on getting them. Ladies and gentlemen, now individually, let's give it up firstly for Shreya Ghoshal. Moving on to one of the finest music directors in the country. I can keep going on and on about the movies. You've seen him in you've heard him in Parinita, you've heard Lage Raho Munna Bhai. I can keep going on, but that really doesn't matter. What we are here for is the music. Let's give it up for Mr. Shantanu Moitra. And finally, I have been trying to figure out how do I introduce Gulzar Sahab. Because whatever I write, whatever I read, if I call him the legend, it's again something very small. All I can say is, he wrote, we heard, he wrote, we saw, and we lived happily ever after. Ladies and gentlemen, the magical Gulzar Sahab with us. Thank you so much for coming here. Let's have a big round of applause, everybody. Let's do this together. This is happening at the Times Lit Fest 2016. Over to you. Thank you. Hello, check. Check, 1, 2, 3. Hello, check. Can I have the vocals a little bit on this cans in front? Check. Give me problems, We just take 5 minutes to just settle sound. Check 1, 2, 3, yeah. Sure. I can't hear you. No, I can't sing like this. Give me a little more voice. Check. गुजरात का चेक करेंगे और ज़्यादा चाहिए कोई आवाज़ वहाँ तक जा रही है या नहीं? मेरी आवाज़ पहुँच गई? आवाज़ पहुँची भी नहीं? क्योंकि ये दोनों बड़ी देर से चेक कर रहे हैं क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं है आज। Little more volume of Gulzar Sahab on the. जी तो
कह रहे हैं आपको चेक कहने के लिए। हाँ फरमाइए। कैश 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 कैश। ठीक है। ये ठीक है। जस्ट एक मिनट, अकॉर्डिंग का साउंड मेरा सब फीडबैक आ रहा है I want to hear the accordion. Mine is okay. कैश 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 कितना अच्छा लगता है ये बोलना सुनना कैश। हाँ कलेंगा। Did you drop my level again, Abhya? You can cut the low mids a little bit. That's bringing that feedback. ठीक है जी फरमाइए, मैं आप क्या कहूँ? बोलिए कि हाँ ये लड़का ठीक बात। Yeah. Accordion. And a little bit of the. You can reduce the piano bit on the speaker in front. Okay? Yeah. Accordion अभी भी नहीं आ रहा. That is accordion. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Check. They have little rock chords. Yeah, thank you. Okay, let's start. मुझे भी मिल जाएगा। नहीं बस ये अच्छा हुआ ये जो अपना लाइटिंग अगर ऐसी रहे तो ताकि चेहरे सारे के सारे नजर आ सकें, ताकि लोगों को देख सकें। वो वैसे ही रखी है अगर लाइट बहुत अच्छा। हाँ अब नजर आ हमें देखने की जरूरत नहीं, हमारी आवाज पहचान है। मेरी आवाज भी पहचान है, कर याद है। दोस्तों ये आपकी पहचान एक और महाकवि से करवाने के लिए आए हैं हम यहाँ, जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है, हमारे कौमी शायर, हमारे कौमी कवि, जिन्होंने हमारे नेशनल पोएट, जिन्होंने हमारा कौमी तराना लिखा है, जन गण मन
तरह से अगर ये कहा जाए कि हाँ गीतकार, अब मेरी बारी है, आप खामोश रहिएगा, कि गीतकार को या लिरिसिस्ट को जो अपनी धुन भी बनाते हैं और लिखते भी हैं, नोबेल प्राइज मिल सकता है। तो आप सोच के देखिए, क्या हमारे पहले लिरिसिस्ट जिन्होंने खुद लिखा, खुद ही धुन बनाई और गाया, जिसे हम रागेंद्र संगीत के नाम से जानते हैं, तो वो टैगोर हैं। उन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है इससे पहले। बहुत दिनों से पहले वो भी एक लिरिसिस्ट और टैगोर कैलिबर, और धुनें भी उनकी अपनी रविंद्र संगीत के नाम से, मतलब वो एक पूरी एक स्कूल है म्यूजिक में, नाम उनके नाम से जाना जाता है। मेरी उनसे मुलाकात बहुत छोटे में हुई थी जब मैं स्कूल में था। उनकी एक किताब से हुई थी जिसका नाम था गार्डनर, और वो कैसे हुई थी लोग जानते हैं, मैं लिख भी चुका हूँ, किताबों में लिखा है। और गार्डनर नाम की वो नज्म माली के नाम से उर्दू में, जिसका तर्जुमा मैंने पढ़ा था, और वो पहली किताब थी जो मैंने चोरी की थी उस लाइब्रेरी से। और बस दैट वाज माय इंट्रोडक्शन नॉट ओनली टू टैगोर, बल्कि बंगला से, बंगाली जबान से, बंगाली दोस्तों से, जो हमारे आसपास वो जबान सुनता था, उससे तारुफ हुआ था, बड़ी से हुआ था मेरा। और वहाँ से बस वो बंगाल से जो एक रिश्ता जुड़ा है, वो टैगोर से लेकर फिर दूसरे बंगाल के राइटर्स होते हुए एक बंगाली लड़की से शादी करनी पड़ी, तब जाके वो रिश्ता पूरा मुकम्मल हो गया। मतलब वो वहाँ तक गया वो रिश्ता मेरा बंगला जबान से। और मेरे पहले गुरु विमल रॉय, वो भी बंगाल से, और मेरे बंगाली दोस्तों का हल्का था। और मैंने उस जमाने में भी, उस दौर में भी, सुभाष मुखोपाध्याय फॉर एग्जाम्पल, उन्हें उस जमाने में भी तर्जुमा किया उनका। सुनील गंगोपाध्याय, उनका तर्जुमा किया, अनुवाद किया। शौकतीदा, उनके ट्रांसलेशन किए। लेकिन इसके बावजूद टैगोर में हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती, उसे बहुत सादर। और मेरा वो पूरा दायरा मुकम्मल होता है, वो पूरा सर्कल कंप्लीट होता है वहाँ पे आके, जब 80 साल की उम्र में आके उनका अनुवाद करने की कोशिश की और हिम्मत की कि हाँ गुरुदेव के पाँव छूएं और चलो इसका ट्रांसलेशन शुरू करें। और आम जबान में, आम लोगों की जबान में, वो हिंदी जिसे हम हिंदुस्तानी कह सकते हैं, उस जबान में करें जो आम आदमी तक पहुँचे। क्योंकि ना वो पर्शियनाइज्ड हो या संस्कृताइज्ड हो, तो वो टैगोर नहीं पहुँचते, आप टैगोर को छू नहीं पाते। वो कोशिश की थी तर्जुमा करने की, उसमें 2 वॉल्यूम्स थी, एक तो गार्डनर की थी पूरी, और दूसरी शिशु नाम से उनकी जो बच्चों की नज़में हैं, उनका अनुवाद किया। और ख्वाहिश ये थी कि काश ये सिलसिला अगर कहीं सही हो जाए तो टैगोर को सिर्फ बंगाल नहीं, सारा हिंदुस्तान स्कूल के लेवल से टैगोर को पढ़ना शुरू कर सके। इसलिए ये कोशिश की थी, और चाहता हूँ अब भी कि वो सारे हिंदुस्तान में हर एक जबान में टैगोर को पढ़ा जाना चाहिए। और पढ़ने से ही मालूम होगा कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है। वो सिर्फ हम जन गण मन से जानते हैं उन्हें, तो सिर्फ उतना कह के वो सही नहीं है, और उससे ज़्यादा जानना बड़ा ज़रूरी है। उनसे जानेंगे और जाके छूएंगे, तब पता चलेगा कि इतना बड़ा बरगद का पेड़ है वो, जो
हिंदुस्तानी शायरी में, हिंदुस्तानी फिक्शन में, हिंदुस्तानी लिटरेचर में, हिंदुस्तानी म्यूजिक में, हिंदुस्तानी पेंटिंग में, हर जगह उन्होंने काम किया है और कितना बड़ा दायरा है। और मैं सिर्फ एक छोटी सी नज़्म से वो अपना तारुफ करवाता हूँ आपसे कि एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे, भेली जानते हैं हम गुड़ की जो भेली भेली कहते हैं, आप क्या कहेंगे अंग्रेजी में भेली नहीं होता, कुछ और ही होता। एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी, और जो मक्खियां पूरी छतरी की तरह फैल गई ऊपर चढ़ते। लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाल रहा था। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाल रहा था। मैं देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रखी। तब से मैं वो कविता भेली टैगोर के लिए लिख रहा हूँ। उसमें जब भी कर रहा था कोशिश में तो मेरी मुलाकात तो थी पहले से। शांतनु आए, एक लोग कुछ करने को जी जा रहा है, करने को वो जी जा रहा है जो रूटीन में चला आ रहा है वो करते आ रहे हैं, फिल्मों में भी करते आ रहे हैं, सिंगल्स भी करते आ रहे हैं। कुछ अलग करने को भी चाह रहा है तो मैंने कहा मेरा हाथ बढ़ाओ, मैं भी कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। और 1 से 2 हुए और मैंने अपने तर्जुमे, अपने अनुवाद में सुनाने शुरू किए जो जहाँ तक पहुँचा था। और मुझे वो कहा कि ये बताइए ये गाने की शक्ति कैसे बन सकती है इसमें से, तो ये कविता आप पढ़ रहे हैं। अगर टैगोर गा सकते थे तो आप भी गा सकते हैं, आप भी कंपोज कर सकते हैं, आप अपनी तरह से कीजिए। और उसके साथ साथ एक जो कमाल किया है, अब मुंह में भी कभी कभी तारीफ करनी पड़ जाती है, वैसे पीठ पीछे किया करता हूँ कि आज की साउंड्स के साथ, मॉडर्न साउंड्स के साथ कंपोज करना टैगोर की कविता को, और फिर भी रविंद्र संगीत का वो और साथ में रखना कि टैगोर फिर भी वहाँ पे नजर आए, ये बहुत बड़ा काम था जो शांतनु ने किया। और मेरे बाद फिर शांतनु अकेले हुए तो उनको भी किसी की जरूरत थी। तो आप जानते हैं किसी दिन आए श्रेया के पास पहुंचे, श्रेया को बुला दिया कि देखो वो जो करती हो वो तो किया ही करती हो, तुम ये भी करके देखो, आओ करो एक साथ हाथ बढ़ाओ। हम फिर 2 से 3 हो गए। और वो नज़्म जो हमने 2010 में, सबसे पहले 2010 में ये हमने रिकॉर्ड की थी। और उसके बाद हम तलाश करते रहे कि शायद कोई और साथ में आ जाए। एक चौथी शख्स की जरूरत थी जो इन पर एल्बम बना ले। और उसमें कौशल साल सारे गाँवों में है, वो साथ में है। और आज थैंक्स टू सारे गाँव के उनकी वजह से ये एल्बम में अवेलेबल है। आज सारा एक जगह ये जतीरा हम एक जगह जमा कर पाए हैं और आपके सामने है। ये नज़्म शुरू वहाँ से होती थी, मैं इजाज़त में पढ़ देता। जब सहाने बुझ गया था रात भर जलकर दिया,
और चिड़ियों के चहकने से मैं जागी, आलसी कदमों से आ बैठी मैं खिड़की पर, केस खोले अपने बालों में लगाकर ताजा बेटी। अब एक एक डिटेल जिस तरह से टैगोर बयान करते हैं वो देखने देता है। अब कितनी तफसील, कितनी डिटेल्स से वो पूरी इमेज बनाते हैं। जब सरहाने बुझ गया था रात भर जलकर दिया, मतलब सुबह हो गई लेकिन वो ये नहीं कह रहे, रात भर जलकर दिया जब बुझ गया और चिड़ियों के चहकने से मैं जागी, आलसी कदमों से आ बैठी मैं खिड़की पर, केस खोले अपने बालों में लगाकर ताजा बेनी। सुबह के हल्के गुलाबी कोहरे में गुजरा मुसाफिर रास्ते से, सुबह के हल्के गुलाबी कोहरे में गुजरा मुसाफिर रास्ते से, मोतियों की माला पहने धूप की किरणें चमकती थी मुकुट पर। मेरे दरवाजे पर आकर उसने पूछा शौक से, वो कहाँ है, वो कहाँ है। मैं ही मारे शर्म के कह न सकी, मैं हूँ वो मेरे मुसाफिर, मैं हुई हूँ मारे शर्म के मैं कह न सकी। आप फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं, गौधुली का वक्त था और जला ना था दिया, गौधुली का वक्त था और जला ना था दिया, बेदिली से मैंने अपने केस बांधे। शाम की सुर्खी रथ पर लौट कर आया मुसाफिर, शाम की सुर्खी में, लाली में लौट कर आया मुसाफिर। झाग उड़ती थी बहुत घोड़ों के मुंह से, गर्द से कपड़े अटे थे। He described the entire journey in this, कि घोड़े हाँप रहे हैं, उनके मुंह से झाग निकल रही है, वो कहाँ से आया होगा, कितने लंबे सफर से काट के आया होगा, और कपड़े उन पर गर्द मट्टी जम चुकी थी। वो उतर के मेरे दरवाजे पे आया और थकी आवाज में पूछा, वो कहाँ है, वो कहाँ है। मैं ही मारे शर्म के कह न सकी, मैं हूँ वो माना मुसाफिर, मैं होती हूँ, मैं होती हूँ। And then he concludes, रात फागुन की है और कमरे में जलता है दिया। वो आया भी और चला भी गया। रात फागुन की है और कमरे में जलता है दिया। रात फागुन की है और कमरे में जलता है दिया, मोर की गर्दन का रंग है मेरी अंगिया का, और चोली सब्ज जैसे ताजा घास। फर्श पर बैठी हूँ खिड़की के तले में, देखती रहती हूँ बस खाली गली, क्योंकि अब वो नहीं आया, वो तो अब निकल गया। रात फागुन की है और कमरे में जलता है दिया, मोर की गर्दन का रंग है मेरी अंगिया का, और चोली सब्ज जैसे ताजा घास। फर्श पर बैठी हूँ खिड़की के तले, मैं देखती रहती हूँ बस खाली गली, और अंधेरी रात में मैं गुनगुनाती रहती हूँ, मैं हूँ वो मेरे मुसाफिर, मैं हुई हूँ, मैं हुई हूँ मेरे मुसाफिर, मैं हुई हूँ। कहाँ से के शुरुआत जब सरहाने
I'll just share with you a little compositional details behind the scene, which is very important because this is Gurudev's work that is happening. So, one of the biggest challenges for me was to work with him, number one. And number two, of course, is Gurudev's work. But as you heard the poetry before, it's free format. There is no chant, there is no tempo as such. So I think why it took so much time, and I want to share this with you. It's important that I share this. Is that this process happened both ways, and I have never worked in such a procedure, which is that the poem that you heard first was given to me as a poetry, and I saw the poem, and a tune got formulated in my head, but not hubahu line by line, just an expression of my tune, which I reacted to the composition. And then I gave the composition back to Gulzar Saab. He took the poem, took my compositions, and converted the poem to lyrics. I think it was a magical transformation which happened every time I was doing that. It was something completely new. How he would tailor, cut, chop, add, and see that अगर कोई line ऐसा हो जो शब्द बंद आवाज में है. Suppose I usually use dummy words. And you would add because in that matching equally, that kind of detailing. This was a master at work which I saw this and I was blessed. The second, I think, the psychological thing which really helped me was, I think the first composition, this one, I was, am I doing the right thing, you know, Bengal, Tagore, will I be banned, who the hell knows. So, Gulzar Saab said, yaar, ek kaam karo. Again, I went to his house, and there a table and there are books, and people who have gone to his house will know that it's like a temple. And सामने there were 3 chairs. So एक में मैं बैठता था, एक में the guitar used to be kept, and third was kept for if somebody was coming. So one day I went there and he kept the guitar. He said, "Guitar मत रखो वहाँ पे." I said, "Sir, कोई आ रहे हैं?" नहीं वो बैठे हुए हैं, देखा नहीं आपने? कौन बैठे हुए हैं? तो गुरुदेव बैठे हुए हैं. What are you saying? So he said that when you are creating, imagine Gurudev is sitting in the room. What kind of note structures, what kind of movements, what kind of expressions would he approve? If you can keep that in mind, you will know that you're in a Gaira. I think this is the most brilliant brief that you can give it to the poet. The whole idea of to keep the presence of Gurudev in it. वो कहीं ना हमसे गुम हो जाए. हर वक्त ये ध्यान रखो गुरुदेव है और उन्हीं की नज़्म है, उन्हीं की कविता है. वो कहीं हमारा लहजा इधर या उधर ना हो जाए. मेरे लिए हालांकि ये दोहरा काम ये था कि एक तो मैंने अपनी तरह के मीटर से उसको जो ओरिजिनल कविता से मिली थी उसके हिसाब से उसे अनुवाद किया, ट्रांसलेट कर लिया. और दूसरी बार मुझे वो जो इनसे मीटर मिलता था और उन्हीं अल्फाज में से उन्हीं लाइनों में से लेकर मुझे वो दोबारा कंपोज करना, मतलब दोबारा अनुवाद कर रहा था मैं. लेकिन कोई लफ्ज़ उस नज़्म में से फिर बदला नहीं, वो उसी में से लेके अंदर मुश्किल कभी कभी लगता था, लेकिन रस बहुत था उसमें. और मुश्किल काम में बड़ा रस होता है, खासतौर पर सॉल्व हो जाने के बाद और भी अच्छा, इतना ही अच्छा लगता है जैसे आपके सामने डाल रहे हैं. And one more thing I want to add कि जब ये जो अभी suppose आपने गाना सुना उसमें this part I was doing, they are all Rabindra Sangeet originally. So what I did was compositionally, because there were new compositions, as a tribute to the genius. All preludes and interludes musically are Rabindra Sangeet. That's a small addition I did there, just to know that this is the man. बड़ा मुश्किल काम, लेकिन आपने किया बहुत अच्छा किया है साथ देने वाले. और एक जो हमारे यहाँ इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो आज कहीं मसरूफ़ नहीं उनकी पहले की जो कंट्री, दैट वाज शान. एंड शान ऑल्सो यूज्ड टू बी देयर विद अस. इट वाज एंजॉयबल टू वर्क. और मैं इस धंधे में हूँ ना, बहुत से काम किए, तो लेकिन इस तरह से कभी मज़ा नहीं आया था जिस तरह से ये आता.
मुझे भी कुछ कहने दो, जरा रहने दो। ये लाइन है, जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। अब जब श्रेया गाती है तो मुझे लगता है नहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये कैसे कहेंगे, ये तो किसी और को कहना चाहिए कि जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। तो मेरे साथ ऐसा एक हादसा इससे पहले भी गुजरा था, मैंने इन्हें सुनाया कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, तो वो अब लड़की की आंख के लिए कहा जा सकता है, तो इट हैड टू बी अ मेल सॉन्ग। हेमंत दा ने वो जिसको कंपोज किया था, तो मैंने सुना कहेंगे नहीं वो कॉम्पोजिशन के बाद कहने लगे ये लता भाई, मैं दादा ये लड़के की आंखें हैं, उनसे खुशबू नहीं आती इस तरह। ये किसी लड़की की आंख होगी, तो मेल शुड से कल नहीं ये कॉम्पोजिशन ऐसी है कि ये तो फिर आई इन्वॉल्व द डायरेक्टर साहब और शीट सेंड, तो मैं दादा ये नहीं हो सकता, ये देखिए नहीं गड़बड़ है। तो मैं बोला अच्छा मैं सिचुएशन में बोलूँगा, लेकिन ये लता को गाना है। अब लता जी के फैन सारे एक ही हैं, लता जी अब क्या करेंगे उस बात। लता जी के गाने के बाद किसी ने आज तक नहीं पूछा, उन्होंने गाने का जेंडर ही बदल दिया अपनी आवाज से, और ऐसा कुछ रिया ने किया तो फिर मैं कहा, लेकिन इसे जस्टिफाई नहीं हुआ। कहीं गुरुदेव ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे। तो वो तीसरी कुर्सी का सवाल आया, फिर मैं इसमें ये श्रेया को गाने से पहले मैंने कहा देखो अगर वो बैठी है घर आंगन में चूल्हे के सामने, चूल्हा जल रहा है, धुआं उठ रहा है, आंख में लग रहा है, और वो मुस्कुरा भी रही है, किसी तरह शाम की संध्या की पूजा पूरी हो जाए, बस वो आने ही वाले होंगे। और मैं जानती हूँ एक लंबी सी आंखें थी, मैं जानती हूँ वो आते ही क्या कहेंगे, जैसी हो वैसी ही चलिए सिंगार को रहना। In fact, when the song was being made, I was pestering after both of them कि गाना मैं शान को नहीं गाने दूँगी। इतना प्यार से नहीं बोला। Can you create this for Sean? So he just made it possible for me to sing. So thank you so much. Thank you. ये मेरा बहुत फेवरेट वाला गाना है इस पूरे एल्बम में से। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहियो, जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहियो।
बहुत अच्छा। Excuse me. Please sit down now. Can you sit down? I can't. I have a knee problem. I'm so sorry. There's no place here. There's no place to sit. There's no place to sit. No place. जो नेक्स्ट गाना हम करेंगे शुभन का तारुफ कराना चाहता हूँ। ये साहबजादे हैं शांति के 2010 में जब हमने पहला रिकॉर्ड किया था तो ये स्कूल में थे और हमारी एल्बम होगी तो यह पता नहीं उनसे एल्बम मैच्योर हुई या इनसे वो मैच्योर हुई, वो कॉलेज में निकल गए। क्लैप करें। Check. Can I have a little more level from it? इसके मानी बताती हूँ जहाँ से मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूँ कि इसको आपको समझा सकूँगे। अब ये गुरुदेव की हरकतें मैंने कहीं इससे पहले नहीं देखी इस तरह का बुझ गया था क्यों दिया। या कमला गया था भूल क्यों, इसलिए सूखी नदी। ये सवाल कुछ इस तरह के हैं जिनके तो पता नहीं क्या। और वो टैगोर ने खुद ही उनके जवाब दिए हैं। पहला एक सवाल है बुझ गया था क्यों दिया, लेकिन हर वो चीज जो वो बयान करते हैं, मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, जब आप अल्फाज सुनेंगे तो समझ में आएगा कि जो चीज, जो सुर, जो जिंदगी का दामन जहां से पकड़ो उसकी हद से ज्यादा जब भी खींचोगे तो वो टूट जाएगा या बिखर जाएगा। और ये इतनी खूबसूरती से कहा उन्होंने, क्योंकि हर बार आदमी एक कवि से यही सोचता है कि कोई फूल के खिलने की बात करेंगे, अब वो कुम्हलाने की बात कर रहे हैं कि कुम्हलाए क्यों, लेकिन हर जगह जो वो दलील देते हैं वो ये है कि इसको आपने इसकी हद से आगे खींचा है और जिंदगी हर बार वहां से टूटती है और वो सुनाई नहीं देती आपको जो कवि को सुनाई देती है, जो टैगोर को सुनाई देती है, जो गुरुदेव ने सुनी। इसकी खूबसूरती वो है कि हमने सुना था और बड़े आराम से इनका डुएट हो गया था कि दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। तो आपने पूछा था बुझ गया था क्योंकि मैंने कहा था कि बुझ गया था, आपने पूछा
किस लिए सूखी नदी, किस लिए सूखी नदी। किस लिए सूखी नदी। जरूरत के लिए उस पर बाज़ जरूरत के लिए उस पर हमेशा के लिए रख लूं। इसलिए सूखी नदी, इसलिए सूखी नदी। तार चटका साज का धुन, तार चटका साज का उसकी हद से ज्यादा खिंच गया था सुर लगाने, इसलिए तार चढ़ा, इसलिए दिए छिड़ो झोंकार तार, छिड़ गलो तार, दिए छिड़ो झोंकार तार, छिड़ गलो तार। लवली, बहुत खूबसूरत जी। आप बहुत खूबसूरत। ये एल्बम करते करते वन डे दुल्ला साहब कॉल मिसिंग की शाम को मेरे को कुछ बड़े इंटरेस्टिंग टैगोर के बच्चों के ट्रांसलेशन हैं। सो तुम क्या काम करोगे इस पर? ये पहले कि मैं बड़ा हो गया, मैं नहीं करता। So, I just want to say that these children's translations for me are just mind-blowing. They are amazing. Of course, what Tagore has written is amazing, but वे गुलजार साहब और उन्होंने तो PhD कर रखी है बच्चों पे, तो चांद और बच्चे actually. So his translation is amazing. I just wanted to share a few of these poems with all of you. जी हाँ, ये मुझे चेतावनी दे दी गई थी कि वहाँ बच्चे भी हैं और मैं काफी सारे नजर आ रहे हैं। हाँ जी, ये आप VIP अंडरवेयर तो नहीं, अब तो दूसरा ब्रांड आ गया, ब्रांड बदल गया। अब वो आप गाइएगा ना जनरली, मैं रविंद्रनाथ टैगोर को सुनाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने
अब वो जाहिर है कि बचपना उन्होंने खुद भी जिया और बच्चों को देखा भी है, उसके साथ इन्वॉल्व। तो और जब तक बच्चों के साथ वो इन्वॉल्वमेंट ना हो, आप अगर इन्वॉल्व ना हो दिल से, अपने आप से, इंस्टिंक्ट से अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो आपके अंदर का बच्चा भी नहीं जी सकता, वो बच नहीं सकता। वो आपके अंदर, आप बच्चे ही रहते हैं तभी जब बच्चों की तरफ प्यार करते हैं लोग, और बच्चे ही नजर आते हैं आपको। तो आप अब इस नज्म में, एक नज्म है उसकी, उसमें बड़ा खूबसूरत लगता है, वो खुद को भी देख रहे हैं और अपने आप को बच्चे की सूरत में भी देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत है ये। और ये टू सी योरसेल्फ एज अ चाइल्ड and yet you we look at yourself from childhood. तो ये बड़ा खूबसूरत है इसलिए। बाबा बैठे, This is a beautiful poem. बाबा बैठे पुस्तक लिखते रहते हैं खुद ही। अब बताओ, वो माँ से बता रहा, अब खुद ही बैठे हो। अब सोचिए आपको कि टैगोर बैठे हुए अपने कमरे में कहीं लिख रहे होंगे और वो शिकायत कर रहे हैं अपनी। बाबा बैठे पुस्तक लिखते रहते हैं खुद ही। अब क्या लिखते हैं, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं होता। उस दिन पढ़ के सुना रहे थे ना तुमको माँ, माँ सच कहना क्या कुछ समझी तुम, ये सब लिखने से आगे क्या होना। अब ये बड़ा खूबसूरत सवाल है बच्चे का। एंड इमेजिन ही, वो खुद ही कर रहे हैं, उन्हें खुद ही लगाया। बाबा बैठे पुस्तक लिखते रहते हैं खुद ही, क्या लिखते हैं, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उस दिन पढ़ के सुना रहे थे तुमको माँ, माँ सच कहना क्या कुछ समझी तुम, ये सब लिखने से आखिर क्या मिलना है। कितनी अच्छी अच्छी कहानियां रोज सुनाती हो, वैसा कुछ क्यों लिखते नहीं बाबा। दादी माँ ने बाबा को क्या राजा रानी वाली कोई कहानी कभी नहीं सुनाई, या वो सारी भूल गए। स्नान में देरी हो जाए तो कितनी बार बुलाने जाती हो। आपने अपने बच्चों के साथ ये एक्सपीरियंस किया होगा। स्नान में देरी हो जाए तो कितनी बार बुलाने जाती हो, खाना परोस के बैठी रहती हो तुम, उनको वो भी याद नहीं रहता। सारा समय बस लिखना लिखना खेलते रहते हैं। लिखना लिखना खेलते रहते हैं बाबा। मैं बाबा के कमरे में अगर खेलने जाऊं तो पाजी पाजी कह के मुझको डांटती हो। बाबा के कमरे में मैं खेलने जाऊं तो पाजी पाजी कह के मुझको डांटती हो। थोड़ा सा भी शोर करूं तो बोलती हो, देख नहीं सकते बाबा बैठे लिखते हैं। बोलो तो सच बोलो माँ, लिखने से क्या होगा। मैं बाबा के कागजों पर कलम दबा से क लिखता हूँ तो क्यों गुस्सा करती हो तुम। बाबा जब लिखते हैं वही लिखते हैं क तब तुम कुछ नहीं कहती। लाइनों वाले कितने कागज बाबा रोज खराब करते हैं। लाइनों वाले कितने कागज बाबा रोज खराब करते हैं। और नाव बनाने को मैं एक उठा लूं तो कह देती वो कागज नष्ट नहीं करते। सादा कागज लिख लिख कर काले करने से क्या नष्ट नहीं होते माँ। मैं बड़ा हूँ और वो हर बच्चे की बड़े होने की खातिर एक और हो जाए। अभी तो मैं बड़ा नहीं हूं ना, ठीक है ना। अभी तो मैं बड़ा नहीं हूं ना, मैं छोटा हूं। अभी मुन्ना ही कहते हैं, मुन्ना भाई
आगे देखो, मैं दादा से ज्यादा मस्त निकलूंगा। अच्छा, दादा के मैंने बड़ा भाई है, दादा ग्रैंडफादर नहीं। अभी तो मैं बड़ा नहीं हूँ ना, मैं छोटा हूँ, अभी मुन्ना ही कहते हैं। मैं दादा से ज्यादा मस्त निकलूंगा, बड़ा होगा तो इतना जितने बाबा हैं। अगर दादा कभी पढ़ना नहीं चाहें, लिए तोते का पिंजरा खेलते होंगे, कहूंगा डांट कर उनको, चलो चुपचाप बैठो और पढ़ो जाकर। कहूंगा तुम बड़े बदमाश लड़के हो, बड़े मामू से कहूंगा दादा से, क्योंकि मैं बाबा हूँ। बजेंगे 10:30 जब, बड़े आराम से उतरूंगा नीचे, मैं लेकर छतरी पैरों में, मैं लेकर छतरी पैरों में चप्पल मोहल्ला घूमाऊंगा। वो बाबा रोज 10 बजे उठ के जाते हैं, मोहल्ला घूम के आते हैं। देखते हैं आपको कैसा है। मुझे जब मास्टर आकर कहेगा किताबें लाओ, देरी हो रही है, स्लेट पकड़ो, कहूँगा मैं अब मुन्ना नहीं हूँ, मैं बाबा के बराबर हो गया हूँ। बड़े हैरान होंगे मास्टर जी और बोलेंगे तो फिर अब मैं चलूँ बाबू मोशाय। मुझे जब खेलने मैदान में ले जाने को आएगा भोला, कहूँगा मैं बहुत मसरूफ हूँ, देखो चलो मत हो, जाओ यहाँ से। मैं मेले को जो निकलूंगा अकेले, जहाँ पर भीड़ होती है, चले आएंगे दौड़े दौड़े मामा। कहीं खो जाओगे मुन्ना, मैं तुमको लेके चलता हूँ। मुझे कहना पड़ेगा जरा देखो तो मामा, मैं बाबा के पावर हो गया हूँ। देखेंगे, कहेंगे हाँ अरे मुन्ना, मेरा मुन्ना तो मुन्ना नहीं है। मैं जब पहले पहल होऊंगा बड़ा उस दिन, मतलब उस दिन जिस दिन मैं बड़ा होगा, जैसे एक दिन में हो जाने वाले, मैं जब पहले पहल होऊंगा बड़ा, उस दिन नहा के घाट से लौटेगी माँ, जैसे ही देखेगी कि घर में हुल नहीं है, शोर नहीं है, और मैं चाबी से बक्सा खोल कर भाई को पैसे दे रहा हूँ, कहेगी माँ ये तुम क्या कर रहे हो बाजी बच्चे? कहूँगा माँ मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, पता भी है मैं बाबा के बराबर हो गया हूँ, अगर कम पड़ गए पैसे तो कहना और ला दूंगा। अब दशहरे के दिन तो मतलब बाबा कहीं बाहर काम पे जाते हैं, दशहरे के दिनों में छुट्टियां होंगी तो बाबा नाव से लौटेंगे, सोचेंगे पूरा आपको लिविंग, पूरा लिविंग स्टाइल, पूरा कल्चर सारे का सारा उस बच्चे की फोन में नजर आता है। वो खूबसूरती है इनको उसकी। दशहरे के दिनों में छुट्टियां होंगी तो बाबा नाव से लौटेंगे, सोचेंगे कि मुन्ना तो अभी मुन्ना है, ले आएंगे छोटे छोटे जूते और कुर्ती। कहूँगा बाबा ये दादा को दे दो कि मैं तो अब तुम्हारे ही बराबर हूँ। Let's share me a request into recite the Purusha favorite poem. Before that, I want to tell him that the translation apart, that there's a amazing, so Dil to Bachcha Hai Ji kind of situation. One day early morning, and both of us have a common interest of astronomy. One day early morning, when usually बहुत कम ही फोन करते हैं और सुबह से होते हैं बिल्कुल ही नहीं करते, तो I think around 7:30 he called up and says, सुना क्या तुमने? मैं डिफॉल्ट सेटिंग है, मैंने कोई गलती की। मैंने कहा सर क्या हुआ? अरे यार प्लूटो बेघर हो गया। डिसोरिएंटेड, प्लूटो कौन है? प्लूटो so actually it affected him that Pluto was not part of the solar system anymore. He said यार तुम आओ सुबह 10 बजे आओ तो चाय पे जरा, we must talk about this. This is Gulzar sir. How can you talk about that? आज तक 9 ग्रह गिनते चले आए हैं, 9 ग्रह हैं हमारे, वही गिनते चले आए। अचानक पता चला नहीं सब 8 हैं, ये कैसे हो? ना तो मैंने कंचे गिने, एक कंचा हो गया, ऐसे कैसे होगा? 9 है तो 9 रहने नहीं, वो हमारे फैमिली का नहीं है।
तो मेरी फैमिली है कि कहेंगे ये कभी कहाँ से पैदा हो गया घर में हमारे ऐसे थोड़ी होता है। And his favorite line is, "I love my stars." अच्छा ये सुनिए, बड़ा अच्छा इमेजिनेशन है। आई होप यू आर विद मी। बच्चों के पॉइंट्स जी, थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएंगे उनका। ये ठीक वो आप कहते ब्लू ब्लू दूर दराज विदेश कहीं सोचो तो जरा, माँ को लेकर निकला हूं मैं। और वो माँ से बात कर रहा है। माँ दूर दराज विदेश कहीं सोचो तो जरा, माँ को लेकर निकला हूं मैं। माँ तुम पालकी में बैठी हो, दरवाजे से झांक रही हो, मैं रंगीले घोड़े ऊपर टकबक 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 पास पास हूँ। घोड़े के खुर रंग बिरंगी धूल उड़ाते, सोचो माँ दूर दराज विदेश कहीं तुमको लेकर निकला हूं मैं। शाम आई और सूरज डूबने वाला था। जोड़ दिघी का वीराना जब सामने आया, वेस्टलैंड जोड़ दिघी। शाम आई और सूरज डूबने वाला था। जोड़ दिघी का वीराना जब सामने आया, दूर दूर सुनसान था सब। मन ही मन तुम डरी हुई थी, सोचती थी हम लोग कहाँ हैं। मैं कहता हूं डरो नहीं माँ, डरो नहीं, वो देखो सामने नदी किनारा। चारों तरफ सब नोकीले सरकंडे थे, बीचों बीच एक लहराती पगडंडी थी। गाय गोरू कोई नहीं थे, गाय गोरू कोई नहीं थे। शाम होते ही सब गांव लौट गए होंगे। क्या जाने हम कहाँ चले थे, अंधेरे में ठीक से देख नहीं सकते थे। तुमने पास बुलाकर पूछा, दूर कहीं वो रोशनी क्या है। ऐसे में एक और रे शोर हुआ, हुई हुई करते लोग हमारी जानिब दौड़े। डर के तुम तो दुबक गई एक कोने में, और कहार सब डर के मारे पालकी छोड़ के कांप रहे थे। डकैती and the voice कहा जाना was a normal thing those times. ऐसे में एक और रे शोर हुआ, हुई हुई करते लोग हमारी जानिब दौड़े। डर के तुम तो दुबक गई एक कोने में, और कहार सब डर के मारे पालकी छोड़ के कांप रहे थे। मैं ललकार के बोला, तुमसे डरो नहीं माँ, मैं जो हूं। हाथों में लाठियां, माथे पर बिखराए बाल, कानों में बालियां डाले जौ की, आए सारे। मैं चिल्लाया, ठहरो, ए खबरदार, एक कदम आगे मत रखना। आंख उठा के देखो जरा तलवार मेरी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं सबके। सुनकर एक दुहाई मारी सबने, हो रे करके लपके। तुम बोली, मुन्ना मत आगे जाना। मैं बोला, आगे देखो ना। बस घोड़ा दौड़ा के उनके बीच में पहुंचा। ढाल तलवार बजी छन्ना के। तुम बोली, मुन्ना मत आगे जाना। मैं बोला, आगे देखो ना। बस घोड़ा दौड़ा के उनके बीच में पहुंचा। ढाल तलवार बजी छन्ना के, क्या घमसान की जंग हुई माँ। सुन के कांप उठी मानो, कितने लोग तो भागे डर के, कितने लोगों की मुंडियां कट गई। इतने लोगों से लड़ते लड़ते सोचती होगी मर गया मुन्ना। मैं जब तब ही खून पसीने में नहलाया, वापस आकर बोला, माँ युद्ध खत्म हुआ। बाहर आकर चूम के मुझको गोद में लेकर बोली, शुक्र है मेरे साथ था मुन्ना, ना होता तो भाई क्या होता। हाँ, कितना कुछ हर रोज होता है आलतू फालतू, ऐसा कुछ क्यों होता नहीं माँ। कितना कुछ हर रोज होता है आलतू फालतू, ऐसा कुछ क्यों होता नहीं माँ, जैसे कहानियों में होता है।
जो सुनता है हैरान होता। वो दादा कहते कैसे हुआ ये, मुन्ना क्या इतना तगड़ा है, और मोहल्ले वाले सारे सुन के कहते शुक्र है मुन्ना साथ थमा के, शुक्र है मुन्ना साथ थमा के। Thank you. I'm back. सबसे पहले मैं नहीं वो जो एक है ना, इसकी माने कौन सी हो, मैंने तो कुछ माना नहीं। अरे नहीं वो जो है उसकी जरा, वो जो जंगल में खड़ी लड़की, मैंने तो कुछ मांगा नहीं है, वो दूध दोने वाला गाय दो रहा है और जंगल के किनारे खड़ी हुई, लेकिन मैंने दूध मांगा। आप तो कह सकी। अच्छा आप सखी से बात कर लो, फिर करेंगे। पहले सखी से बात करें। The credit for this composition goes to Shreya, because I was struggling with the poetry, studying with all the poetry, but this one specifically. She gave me a clue that one of the Tagore's Rabindra Sangeets was very favorite of M.S. Subbulakshmi, and that just gave me a in point and a trigger to this composition. And in fact, conveniently, she's forgotten the first 4 lines came from Shreya, so thank you. This is a beautiful song. Yeah, now that you mentioned, Tagore as a composer had a lot of influences in his songs from the Western world. A lot of his songs can be, in fact, if you see that they sound like Western songs, their compositions are like that. Some of them also have a lot of influences from the South Indian ragas and the style of music. So when I had heard this song in the voice of M.S. Subbulakshmi, it has stayed in my heart forever. It's a beautiful edition. Amar Mullika Boe. Uska influence hai thoda. So this got a little Carnatic to this song. Yes, it's good. सखी सुन वो जोगी देख तो, ओ सखी सुन वो भिक्षु देख तो, क्यों मेरे दरवाजे पर आता है सुबह से, क्यों मेरे दरवाजे पर वो आने लगा है, क्या करूं उसको बुलाऊं या किधर दूं, भिक्षा दूं जाकर माया फिर दूं उसको, ओ सखी सुन वो जोगी देख तो। যখন প্রথম দেখেছি বলি আমার
তোমার লাগিয়া তখনই বন্ধু বেঁধেছিল অঞ্জলি আমার মল্লিকা বলে মল্লিকা বলে যখন প্রথম ধরেছে বলি আমার মল্লিকা বলে घनी रातें और सावन ओ सखी ओ जोगी सावन में जब रातें घनी हो जाती है कांच पड़े रहते हैं आंखें भीग जाती है हर बार वो बजाता है सुबह शाम क्यों लौट आता है ধরেছি বলে আমার মল্লিকা বলে তোমার লাগিয়া তখনই বন্ধু বেঁধেছিল অঞ্জলি তোমার মল্লিকা বলে মল্লিকা বলে যখন প্রথম ধরেছি বলি আমার মল্লিকা বলে मल्लिका बोले আমার মল্লিকা বলে Last presentation for the evening. This is your favorite song. मैंने तो कुछ मांगा नहीं. मैंने तो कुछ मांगा नहीं, जंगल के किनारे पेड़ की ओट में खड़ी रही नजर झुकाए। इमेजिन ये होल पिक्चर, मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा। मैंने तो कुछ मांगा नहीं, जंगल के किनारे ओट पेड़ की ओट में खड़ी रही मैं नजर झुकाए, सुबह की आंख में कच्ची नींद थी। And every expression has come from Tagore. आप इस किताब में you can match, उसमें बांग्ला साथ साथ पब्लिश की है, you can match the lines with it. सुबह की आंख में कच्ची नींद थी और हवा में शबनम थी, गीली घास की सुस्त सुगंध थी, हल्की धुन में लटकी हुई तुम अकेले कुटिया के बाहर बरगद के नीचे कोमल हाथों से गाय दो रहे थे। मैंने तो कुछ मांगा नहीं, मैं खड़ी रही जंगल के किनारे पेड़ की ओर खड़ी रही नजर छुड़ा। इस कॉम्पोजिशन का एक कमाल का चैलेंज था कि हमने विजुलाइज किया था कि शायद इट्स अ विंटर इन सबर्बन बंगाल, थोड़ा सा कुआशा है, हो रहा है, एंड देयर इज अ सेंस ऑफ लोनलीनेस, भीड़ भाड़ नहीं है. सो ट्राई टू गेट दैट इन द कॉम्पोजिशन. दिस वाज गोगा साहब का आइडिया कि एक ठहराव होना चाहिए इस कॉम्पोजिशन में, एंड बिकॉज ऑफ द पोएट्री. लेट्स ट्राई.
बोल रहा था पगडंडी पर आम का बोर भी बरस रहा था शिव मंदिर में आरती का घड़ियाल बजा था बरगद के तले तुम गाए दोह रहे थे बरगद के तले तुम गाए दोह रहे थे लुटिया लेकर खड़ी रही कुछ मांगा नहीं कुछ मांगा नहीं मैंने तो कुछ मांगा झाग भरे तन पे तुम्हारे हाथों के कड़े थे खनकते रहे दिन चढ़ने लगा फिर भी मैं कुछ बोली नहीं कुछ बोली नहीं दो प्यासे नैन लिए पेड़ की ओट में खड़ी रही बोली नहीं कुछ मांगा नहीं कुछ मांगा नहीं खड़ी रही खड़ी रही कुछ मांगा आपको लगती है वो प्रेजेंस गुरुदेव की जो मैं खाली कुर्सी के सामने रख के देख रहा था सामने सबने देखी है कहीं भी कंपोज करते हुए या गाते हुए वो सुर जो जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं गुरुदेव टैगोर वो आपको उनकी प्रेजेंस पूरी की पूरी महसूस होती है और मेरा ख्याल है इट्स अ रेयर वर्क वेरी रेयर वर्क which Shantanu has done and which Sean has done and which Shreya has done. It's बहुत रेयर काम है। मैं तो वो गुड़ की भेली लिए वो चल रहा था तो मेरे लिए नेचुरल था कि वो टपक रहा था तो चाटूंगा और क्या करूँगा लेकिन बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सी एक इमेज मेरे सामने जो गुरुदेव की आती है जो टैगोर की वन सिंगल मैन इज अ कल्चर ऑफ फुल एरिया फुल कम्युनिटी एक अकेला आदमी सब वो मतलब ये बहुत कम होता है कहीं भी नहीं है और कोई मिसाल मुझे नजर नहीं आती कि एक आदमी एक पूरे इलाके का एक पूरे कम्युनिटी का पूरा कल्चर है उस इलाके का और जो जिस पे हिंदुस्तान को नाज है
पूरा हिंदुस्तान नाज करता है इस बात पे। कंसिडरिंग बेवजह नहीं है। और मुझे यूँ महसूस होता है कि गाँव से लगी हुई नदी है जिस पर 12 मास बूंद बूंद आसमान बरसता है। तो वेरी एब्स्ट्रैक्टिंगली महसूस होती है, पता नहीं आप तक पहुँचा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन वो एक शख्स, अकेला शख्स, गांव से लगी हुई नदी है जिस पर 12 मास बूंद बूंद आसमान बरसता है, जल तरंग बजता है, जौल बोले पाता नोरे जौल। ये जो टैगोर की सबसे पहली नज्म, जो पहली कविता जो उन्होंने कही थी वो ये थी, जौल बोले पाता नोरे, पानी गिरता है, बूंद गिरती है और पत्ता हिलता है, जौल बोले पाता नोरे। जल तरंग बजता है, जौल पोड़े पाता नौड़े, जौल पोड़े पाता नौड़े, सारा गांव जल तरंग के बोल क्यारियों में डूब के सींचता है। सारा गांव जल तरंग के बोल, वो गांव पूरा हिंदुस्तान है। जो क्यारियों में बो के सिंचा करते हैं, बीज फूटते हैं तो कोंपलें निकलती हैं पर लगे ख्यालों की। बीज फूटते हैं तो कोंपलें निकलती हैं पर लगे ख्यालों की, और लफ्ज जब पलक पलक उठा के देखते हैं सब, तो नज़्म आंखें खोलती है शाम पर, वहाँ से पलता है। एक फसल की तरह, एक कौम की तरह, खेती की तरह, एक फसल की तरह उगा हुआ जमीन पर एक शख्स, एक फसल की तरह उगा हुआ जमीन पर एक शख्स आस पास 12 मास गुनगुनाता है, जौल बोले पाता नोरे, जौल बोले पाता नोरे। गाँव से लगी हुई नदी है भरी हुई जिस पे 12 मास बूंद बूंद आसमान बरसता है, आसमान बरसता है, जौल बोले पाता नोरे। Just wanted to introduce the musicians who played with me. Sanjeev Singh was on tabla, Vaibhav was on percussion, Danny Dilgard was on accordion, Shubham Moitra was on guitar, Archit Shah was on keyboards. And thank you for all of us. The album is available. प्रवीण कौशल, Yeah, जिनकी वजह से ये हम एल्बम इकट्ठी कर सके और आपके लिए हाजिर। And the album is available. Please support independent music. It's important. And thank you for coming here. Thank you so much. Ladies and gentlemen, let's have a big final round of applause for the very beautiful, melodious, iconic singer, Shreya Ghoshal, along with the best music director, Mr. Shantanu Moitra, and the name's enough, Gulzar Saab, let's give it up. Thank you so much. We take this moment to thank our sponsor, Aditya Birla Group, for the entertainment, and our music partners, Saregama. Thank you so much, ladies and gentlemen. It was a beautiful evening at the HDFC Lawns at JSW Presents Times Lit Fest 2016, powered by Yes Bank. Thank you so much.